Hello everyone. In this video, we will discuss more standard integration formulas. So far, we have discussed almost 13 standard formulas, correct? But in this video, by using the substitution method, we will derive four more standard integration. See, first one is the integration of f dash ka x divided by fx ka dx. So when we put fx equal to t, so this f dash x dx becomes dt, correct? Fx equal to t, then f dash x dx is dt. So therefore the integration is converted into the dt by t, and this is what? Log of t. And what is t? Log of f of x, correct, plus ka c. So this is very important formula, and on the basis of this formula now you can easily find out the integration of the standard formula number now 14, integration of cot x ka dx. What is cot x? Cos x by sin x ka dx. The differentiation of sin x is cos x. So directly this is log of mod of sin x plus का c. So this is your 14th standard formula. इसके पहले हमने 13 स्टैंडर्ड फार्मूला चेकआउट किए थे, करेक्ट? गॉट इट? नाउ कमिंग टू द 15th one. 15th one is this one, integration of tan x का dx, correct? So what is tan x? Tan x is integration of sin x by cos x का dx. Now look at here. Cos x का derivative is minus sin x. Correct? Cos x का derivative is minus sin x. So I can just rearrange this as minus of minus का sin x divided by cos x का dx. So cos x का derivative is minus sin x. Minus is there. So this integration is minus of log of cos का x. This can be written as log of cos की x की power minus 1, correct? Cos x की power minus 1 means 1 upon cos x, correct? So this is log of 1 upon cos x, and 1 upon cos x is log of mod of sec x plus c, correct? So the integration of cot x dx is log of mod of sin x plus c, the standard formula 14. 15th one is integration of tan x dx. See, earlier we have seen the integration of sin x, cos x, sec square x, cosec square x, sec x, tan x, and the integration of cosec x, cot x. But in earlier lectures we didn't discuss about the integration of cot x and integration of tan x, because here we use the substitution method. We put fx as t, then f dash x ds become dt. So whenever the derivative of this one is this, then the answer will be log of this fx. So on the basis of this formula, I can find out the integration of cot x dx as log of mod of sin x. And similarly, the integration of tan x is log of mod of sec x, or you can say that minus log of mod of cos x, correct? So now coming to the next one, and next two are very interesting. Now coming to this one, this is the 16th formula, that is integration of sec x dx. So how to do this? See, sec x multiplied and divided by sec x plus tan x multiplied by sec x plus tan x and divided by sec x plus tan x. So this can be written as integration of sec square x plus ka sec x into tan x divided by sec x plus
tan x का dx. Now you can see that the differentiation of sec x plus tan x is this one. What is the differentiation of sec x? Sec x का differentiation sec x plus sec x into tan x. What is the differentiation of tan x? Tan x का differentiation is sec square x. So directly I can find out this as log of mod of sec x plus tan x. So this is the integration of log of sec x tan x. Got it? ठीक है, correct? Okay, now coming to the two important aspect of this formula. Two important aspect, correct? Number one is, see यहाँ इधर कहते log of mod of sec x को मैं लिख सकता हूँ 1 upon cos x, और tan x को I can write sin x upon cos x, correct? So this is what log of 1 plus sin x divided by cos x under the modulus sign. So this is what 1 plus sin x is cos x plus cos x by 2 plus sin x by 2 का स्क्वायर, करेक्ट है क्या? एंड दिस इज cos स्क्वायर x by 2 माइनस का sin स्क्वायर x by 2. सो एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने को सब पता ही है क्या होता है. दिस इज log ऑफ tan ऑफ, करेक्ट, 5/4 प्लस का x by 2 एंड ऑफ कोर्स प्लस c. So this formula, the integration of sec x dx is log of mod of sec x plus tan x, याद रखो, or it is log of tan of pi/4 plus x by 2. ये pi/4 plus x by 2 कैसे आया? Here we will remain with cos of x by 2 plus sin of x by 2, और यहाँ पे cos of x by 2 minus sin of x by 2. एक बार फिर से log of cos of x by 2 plus का sin x by 2, और यहाँ क्या रहेगा cos ऑफ x by 2 माइनस का sin x by 2, करेक्ट? cos x by 2 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से ले लेंगे बाहर, तो दिस इज व्हाट 1 प्लस tan ऑफ x by 2 by 1 माइनस tan ऑफ x by 2, विच इज log ऑफ tan ऑफ pi/4 प्लस का x by 2 का फार्मूला, करेक्ट? सो देयरफॉर this is, you have to remember, the integration of sec x dx is log of sec x plus tan x mod में, or this also you have to remember log of tan of pi/4 plus x by 2 and of course plus c, the constant of integration, correct? Fine. Now coming to the second aspect. The second aspect of this formula is what? See, the second aspect is, this is log of mod of sec x plus tan x, और यहाँ नीचे में 1 होगा, करेक्ट है? एंड दिस 1 कैन बी रिटन एज sec स्क्वेयर x माइनस का tan स्क्वेयर x by using the trigonometry. Now I can factorize. So here I will remain with log of 1 upon mod of sec x plus का tan x. Got it? sec x माइनस का tan x, करेक्ट? यहाँ फैक्टराइजेशन होगा, ऊपर का फैक्टर कट जाएगा, कैंसल आउट होगा, तो वी विल रिमेन विथ 1 अपॉन sec x माइनस tan x, एंड दिस कैन बी रिटन एज बाय लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट माइनस का log ऑफ mod ऑफ sec x minus tan x. So what is integration of sec x dx now? Log of mod of sec x plus tan x. This you have to remember always. And from this I can write this formula as minus log of mod of sec x minus tan x by using such type of trigonometric transformation. And also this formula is equal to the log of tan of pi/4 plus x by 2 by using this kind of trigonometric transformation, correct? Okay, this is 16th formula. You have to remember
वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, इसको भी हाईलाइट कर लो। जस्ट हाईलाइट दिस वन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx. The answer is log of mod of sec x plus tan x or minus of log of mod of sec x minus tan x or log of tan of mod में log of mod of tan of pi by 4 plus x by 2। करेक्ट है क्या? सिमिलर वे में we can now find out the integration of cosec x, the 17th one। ओके, तो अभी सिमिलर वे में 17 प्रॉब्लम स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का dx। सो दिस इज कोसेक का x इंटू कोसेक का x माइनस का कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक का x माइनस का कॉट एक्स dx। करेक्ट है ना? हमने कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का dx। अब इसका डेरिवेटिव दिस फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज दिस वन। गॉट इट? नाउ टेल मी हाउ इट इज। The differentiation of cos x is minus cosec cot x, got it? And differentiation of minus cot x, पहले cot x का लेते हैं। The differentiation of cot x is minus cosec square x, therefore differentiation of minus cot x is plus का cosec square x, got it? So therefore this is equal to log of mod of cosec का x minus का cot x, एक फार्मूला। Now I can generate two more formulas, correct, similar fashion में। This is equal to log of cosec मतलब 1 upon sin, मतलब 1 minus cos x by का sin, and this is what log of 1 minus sin मतलब 1 minus cos मतलब 2 sin square x by 2, sin x का 2 sin x by 2 cos का x by 2। दिस इज फाइनली log of tan of x by 2, करेक्ट? log of mod of tan of x by 2 एंड आपको प्लस का c। एंड द थर्ड वन इज, इसी को हम कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू log of cosec x माइनस का cot x डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, करेक्ट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे 1 है, करेक्ट? इसके अपॉन में 1 रहेगा। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस इज लॉग ऑफ 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस वाले फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये जो अलजेब्रा यहाँ अप्लाई किया है ना इस प्रकार के, कि ये इनफैक्ट जो होते हैं यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, करेक्ट है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, ठीक है, ये माइनस है सामने में 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसको हम लिखेंगे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की पावर -1 इधर आ जाएगा सामने में लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये अलजेब्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक फार्मूला ये बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। दूसरा फार्मूला ये बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स बाई 2 प्लस का सी। और तीसरा फार्मूला ये बन गया, द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट का एक्स, करेक्ट? ठीक है। सो ये अभी तक के हमने 16 और 17 फार्मूलाज देख लिए,
करेक्ट है, 14, 15, 16, ये 17 था, दिस इज 17। तो अभी तक के हमने 17 स्टैंडर्ड फार्मूला देख लिए, और अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, यही दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस का सी, है ना। ओके तो इसके ऊपर इन 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 जो इंटीग्रेशंस के कॉस एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन और कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसके ऊपर अब प्रॉब्लम देखते हैं। सो आई होप दैट नाउ you can remember the formulas of integration of tan x dx, that is log of mod of sec x, okay, and the integration of cot x dx is log of mod of sin x, and integration of sec x dx is log of mod of sec x plus tan x, या फिर log of mod of tan of pi by 4 plus x by 2, and similarly cosec x dx का इंटीग्रेशन, उसमें भी मैंने 3 फार्मूले बताए थे। इनके ऊपर अब प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम देखिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको रिवाइज करना है और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू का tan 2x इंटू का tan 3x। तो अभी तो मैंने आपको प्रोडक्ट फार्मूला बताया नहीं है इंटीग्रेशंस में, अब इस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट्स है फंक्शंस का, हाउ टू डू दैट। सो कमिंग टू दी ट्रिग्नोमेट्री, tan of 3x कैन बी रिटर्न एज tan of x प्लस 2 of x, करेक्ट। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में किया है। दिस इज tan x tan of 2x 1 प्लस tan x इंटू tan का 2x, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लीजिए, तो दिस इज tan ऑफ 3x माइनस का tan ऑफ 3x इंटू tan का x या 2x tan का x, दैट इज इक्वल टू tan का x प्लस tan का 2x। आई वॉन्ट दिस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, सो दिस इज वॉट tan का 3x इधर आ जाएंगे, माइनस का tan x माइनस का tan 2x, दैट इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan का 2x इंटू tan का x। दिस इज आवर ट्रिग्नोमेट्री। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम while doing the chapter trigonometry. Now for the integration of this is integration of this, correct? So therefore the answer will be 10 का integration what is log of sec x, okay, so divided by 3 करना पड़ेगा, minus log of sec x, of course mod is always there, huh? Mod is always there, and this is log of sec 2x divided by 2 and plus का c. So log of tan x is log of sec x, so tan 3x का इंटीग्रेशन करेंगे log of sec x 3x divided by 3, simply tan x का इंटीग्रेशन log of sec x and minus log of sec 2x by 2. So this formula, the integration of tan x dx is log of sec x, okay, you have to remember. Now coming to the second one, that second one is very very important, करेक्ट है, नोट कर लिया होगा, इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हो, करेक्ट है। यू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड देन आफ्टर यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन का 2x, साइन का 3x, साइन का 5x dx. Now note down here, that 2x is the difference of 5x और 3x का डिफरेंस 2x होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो डिफरेंस ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ आप लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, दिस कॉन्सेप्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ एंगल। सो इसको आगे बढ़ाते हम ट्रिग्नोमेट्री में किए थे, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल
then we have to multiply it and divide. We have to multiply it and divide in the numerator and denominator that sign of difference of those angles. ऐसा प्रॉब्लम आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, समेशन में आया था 1/sin और फिर और एक और साइन, इस प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ किए थे. सो देयरफॉर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया. सो हियर कमिंग टू द इंटीग्रेशन, दिस इज साइन ऑफ डेफिनेटली 5x माइनस का 3x डिवाइडेड बाई साइन का 3x इंटू साइन का 5x dx. तो साइन का सम फार्मूला लगाएंगे, साइन 5x कॉस का 3x माइनस है तो माइनस कॉस का 5x साइन का 3x डिवाइडेड बाय साइन का 3x. क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ एंगल्स का, वो आपको रिपीट कराएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो एडवांस लेवल के बनते हैं, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल का साइन का हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड करना होता है, याद आ रहा होगा. खैर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में कोई इशू नहीं है, अपना इंटीग्रेशन में कोई इशू नहीं है. हम यहाँ से साइन 5x तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का 3x का dx माइनस दूसरे इंटीग्रेशन में साइन 3x कटेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का 5x dx. इंटीग्रेशन ऑफ कॉट मुझे मालूम है लॉग ऑफ साइन होता है, क्योंकि यहाँ पे 3x है डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ साइन ऑफ 5x होता है डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस का c. सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और बढ़िया प्रॉब्लम लेते हैं जो कि बोर्ड लेवल पे बहुत आता है, लेकिन वो ही कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल पर और मेंस लेवल पे जो ये डिफरेंस ऑफ एंगल का मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं. अब समझ में आ गया है कि वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉब्लम में देखेंगे. यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ x माइनस बीटा है, तो डिफरेंस से हम साइन के डिफरेंस से इनका डिफरेंस क्या आएगा, पहले डिफरेंस देख लो. x माइनस अल्फा और माइनस x माइनस बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, करेक्ट. तो आप क्या करेंगे, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाइड और साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन में. साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा एक कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है. अब यहाँ यही वाला प्रोसेस हमने वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में किया था कि साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा. तो मैंने साइन एंगल के डिफरेंस के साइन से, अब क्वेश्चन में साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है. तो डिफरेंस ऑफ एंगल के या तो साइन से या कोसाइन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब यहाँ पे भी एक और ट्रिक है, ये साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा जैसे हमने वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में किया था, लेकिन इस बीटा माइनस अल्फा को वापस ऐसे ही लिख दो. व्हाट इज दैट, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये इसको हमने वापस वैसे ही लिख दिया, लेकिन इसको नहीं लिखना, इसको अब एज इट इज रहने दो ऐसा ही. तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा लेकिन यहाँ पे वापस यही फॉर्म आ जाएगा. इससे क्या होगा कि आई कैन अप्लाई नाउ दिस इज व्हाट 1/sin बीटा माइनस अल्फा. नाउ हियर साइन ऑफ a माइनस b, तो साइन ऑफ x माइनस अल्फा कॉस ऑफ x माइनस बीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ x माइनस अल्फा साइन ऑफ x माइनस बीटा एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस अल्फा साइन ऑफ x माइनस बीटा. गॉट इट. तो पहले वाले में से साइन x माइनस अल्फा x माइनस कट जाएगा तो कॉस ऑफ x माइनस बीटा आएगा. तो यहाँ पे तो ये तो पहले से ही है साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और अब इंटीग्रेशन में आ गया कॉट ऑफ, क्या बचेगा, x माइनस बीटा, और उधर में क्या कटने वाला है, साइन x माइनस बीटा साइन x माइनस बीटा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ कॉट ऑफ x माइनस का अल्फा, और इस पूरे का dx को हम निकाल लेंगे. तो दिस इज व्हाट साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस बीटा, करेक्ट, और इसका मॉड, और यहाँ माइनस कर देंगे लॉग ऑफ
मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ये आंसर है। अब लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे नीचे में लिख दो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा और इसका पूरे का मॉड। अब इसको हटा दो, सो दिस इज योर आंसर प्लस सी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। होमवर्क में लिख लो डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा और कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा कर दिया इस बार। यहाँ साइन से नहीं, यहाँ साइन और कॉस है, कॉन्सेप्ट सेम है, डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे और फिर या तो साइन ले लेंगे, यहाँ पर साइन ही से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या है कॉस कॉस कट जाएगा, एक जगह पे जो भी कैंसिल आउट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर tan x प्लस, अब क्या हो गया ना, आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस sec x, आई कैन राइट दिस -1 एज sec स्क्वेयर एक्स माइनस का tan स्क्वेयर एक्स, करेक्ट। बस यही करना है, यहाँ नहीं, नीचे में एज इट इज sec x प्लस 1, तो ये हो जाएगा tan x प्लस sec x। अगर मैंने कॉमन लिया, ये पूरा एक माना तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से मैंने sec x प्लस tan x लिया है, माइनस के साथ में sec x माइनस tan x बचेगा, करेक्ट। फैक्टराइजेशन किया ना इसमें, तो tan x प्लस sec x एक फैक्टर दोनों में कॉमन है, निकाल लिया। अब यहाँ नीचे में आते हैं, दिस इज व्हाट tan x माइनस का sec x प्लस का 1। अब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये भी वही है, 1 माइनस sec x, 1 माइनस sec x और माइनस माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, करेक्ट। तो फाइनली मैं किस में इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसका तो बनता है log ऑफ sec x, ऑफकोर्स मॉड रहेगा, और इसका बनता है log ऑफ sec x प्लस का tan x का प्लस का c। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, देखो ये a cos x प्लस माइनस b sin x का कॉन्सेप्ट है, तो हमको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका 2 आ जाएगा, करेक्ट है। इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया 2, मल्टीप्लाइड भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बैलेंस भी हो गया। गॉट इट। सो दिस इज व्हाट 1/2 dx अपॉन, अब ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ π/3 cos x प्लस का cos का π/3 साइन का x, ठीक है। cos π/3 √3/2 होता है, cos sin π/3 √3/2 और cos π/3 1/2 होता है। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा dx अपॉन, ये पूरा साइन का फार्मूला बनेगा x प्लस π/3, 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, कोसेक का इंटीग्रेशन में जानता हूँ, कोसेक ऑफ x प्लस π/3 का dx। अब मैं इसमें दूसरा फार्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। आपको मालूम है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और दूसरा क्या होता है tan ऑफ x/2 लॉग ऑफ tan ऑफ x/2, करेक्ट। तो मैं उसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये तो बनेगा हाफ, और यहाँ log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2 होता है, अगर ये पूरा x होता, यानी एंगल हाफ करना है, तो यहाँ पर हाफ करेंगे तो ये क्या बनेगा x/2 और ये π/6 प्लस का c। गॉट इट, ठीक है। इस वीडियो में अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसको चेकआउट करते हैं। तो देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 कॉट एक्स को लिखेंगे हम cos x बाई साइन एक्स, इसको लिखेंगे 1/sin x
प्लस कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स। वाई आई एम डूइंग लाइक दैट? बिकॉज बड़ा ऐसा एक्सप्रेशन है, सो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, देयर फोर it is better to convert all the expression in terms of sin x cos x only. So this is what, this is 1 plus LCM आ जाएगा sin square x, करेक्ट, sin square x, तो यहाँ पे आएगा cos x इंटू 1 प्लस cos x, गॉट इट। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये इधर आ जाएगा sin square x, यहाँ पे 2 भी था, दिस इज 2, ठीक है। इनका एलसीएम साइन एक्स, ये साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट है, ओके। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ये बनेगा 2 कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ जाएगा, ये 2 कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, फिर ये 2 कॉस एक्स ये कॉस एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो वहाँ से एक कॉस स्क्वायर एक्स को ले लो साइन स्क्वायर एक्स के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट में चल रहा है 1 प्लस 2 कॉस एक्स, और वहाँ आप बचेगा एक कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ का एक कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन गया, यहाँ पे कितना बचेगा, एक ही कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स में से एक ही कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और ये पूरा 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इस पूरे का स्क्वायर, तो मॉड वाड हम लेते नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, करेक्ट, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस कॉस कटेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स आ जाएगा, खत्म। अब कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन निकालना है, कुछ है क्या, 1 प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स बाई 2, ठीक है ना, करेक्ट है। कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होएगा, दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, 1 बाई 2 को फिर 2 कर देना और ये आपका आंसर होगा। अब इस आंसर में आप एक काम कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी बताइए, तो ये वाले इंटीग्रेशन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपका आंसर क्या है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, मैंने ऐसे ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्ट कर दिया तो ये भी मेरा आंसर है, और यहीं पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं इंटीग्रेशन हूँ, ये इससे लेते हैं, यहाँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 अपॉन साइन एक्स मतलब कोसेक एक्स डी एक्स प्लस का कॉस एक्स बाई साइन एक्स मतलब कॉट एक्स डी एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ। 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स का भी इंटीग्रेशन मुझे मालूम है, लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई 2 का मॉड प्लस का कॉट एक्स का भी मेरे को इंटीग्रेशन मालूम है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार का आंसर होगा तो ऐसे करना है ना। कॉट एक्स का आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स ही होता है ना, करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपका आंसर ये है तो आप इससे जाइए, ऐसा आंसर है तो ऐसे जाइए, दोनों मैंने तरीके बता दिए। तो अब हम आ चुके हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के ऊपर। इनके ऊपर स्टैंडर्ड जो फार्मूलेज बनते हैं वो मैंने tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन बताया, और उनको भी कैसे तोड़ मरोड़ के लिखते हैं वो भी बताया। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम बनते हैं और वही प्रॉब्लम जनरली जेई मेंस में आते हैं। तो आगे के 2 लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एज फार एज योर जेई मेंस एग्जामिनेशन, करेक्ट।